कोर्स का जो डायरेक्शन है वो जन्म मरण के चक्कर से निकलना है, जबकि लोग जो यहाँ पे आए हैं वो अपने रूटीन प्रॉब्लम्स को लेके आए हैं। तो अभी तक के जितने भी वीडियोस मैंने बताए हैं उसमें एक तो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन है, बट ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने ये कोशिश की है कि जिन जिन लोगों ने कोर्स को अटेंड किया है उस क्रॉस सेक्शन से कुछ लोगों को निकाल के उनके व्यूज़ लेके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, ताकि आपको ये डिसाइड करने में आसान हो कि ये कोर्स वर्थ इट भी है या नहीं। मेरे विचार तो आप लोगों ने काफ़ी सुन लिए। अभी मेरी मुलाकात यहाँ पे मैक्स से हुई है, इसने हमारे साथ ही ये कोर्स किया है और इससे जानते हैं कि ये स्लोवाकिया से, अभी ये श्रीलंका से फ्लाई करके यहाँ पे सिर्फ इस कोर्स को करने के लिए आया है। सो इससे पूछते हैं कि भाई ये यहाँ आया क्यों और इसके क्या तजुर्बे हैं। सो मैक, व्हाट ब्रिंग्स यू? I'll just put a burst of questions and you can take your own time to see. Question number 1, how did you get to know of it? Question number 2, what brings you here? Question number 3, what is your experience on the course? And question number 4, what is your takeaway from the course? And question number 5, is there a second or third course, or this is the end period? Over to you. I'll start from the 5. Yeah. So I will definitely come back. I mean, we just finished today our Vipassana, so my mind is still processing of what happened during these 10 days. These 10 days were, I'm not going to lie, they were intense, even for me as I practice yoga, meditation. But even though these days were intense, I feel a change, a huge change. Even now, a few hours after we finish, of how I think, how I process, how I think about thoughts that I used to think about. They were so fast, so reactive. Now I feel everything needs time, and also it's because we just finished now, so it still needs time. But I think everyone should practice or should give it a try to practice Vipassana. The reason behind this is it's truly about yourself. Vipassana is truly about who you are and what you bring out through life, how life around you sees you, because it's only about you, how you react. It only comes from here, from yourself. And as our Guruji said here, and as it was said many times during these 10 days, it brings you out of misery, it brings you out of anger, it brings you out of any kind of negativity you have in yourself, because like I said again, it's about you. And these 10 days were intense. Every day, every second, third day, you can see your mind, you can feel your mind, how it's changing, how it's improving, how it's getting sharper, how what you hear from Guruji, how you see those things applying to yourself, how it actually works. So it does work, but you have to come here, or any center in India or any center around the world. I came here to India to experience true Vipassana in India. And how I heard about this is my friend through yoga in Mysore. He told me, he just started talking about Vipassana, so I asked him, Vipassana, never heard about this, what is Vipassana? He explained this to me. He explained it's a 10-day course where you find the truth about yourself, and that's the main point of it, is finding the truth about yourself, who you are, your feelings, your inside, your miseries, which are deep inside. And just to sum it up all, yes, it is intense. Yes, you can give it 1 try, 2 tries, 3 tries, but definitely come, find a nearby center or any center. I travel thousands of miles because of this, so there is no the distance. There's no limit on the distance. Find a center that suits you. Do it, definitely do it. I recommend it 100%. And Shanti to everybody. And now the most difficult question. Those were the easy ones. Yes. The most difficult is, are you going to wear this dress outside this place as well? I wear it outside all the time. All right. I wear it in north, I wear it in the south, and people love it when I wear it. Looks good on you. Thank you so much. Thanks, Mac. Thank you very much. Thank you. Thank you. So this is Rohit, and you will have to introduce yourself. And 2-3 सवाल हैं सिर्फ मेरे, और मैं सवाल पूछ के हट जाऊंगा. पहला सवाल है कि इस कोर्स पे आए क्यों? A youngster like you should be in Manali or somewhere.
इस कोर्स पे क्या कर रहे हैं, दैट इज़ वन। दूसरा, इस कोर्स के प्रोसेस से कितना एग्री करते हो। तीसरा, और जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि इस कोर्स का जो डायरेक्शन है वो जन्म मरण के चक्कर से निकलना है, जबकि लोग जो यहाँ पे आए हैं वो अपने रूटीन प्रॉब्लम्स को लेके आए हैं। तो एंड यू वुड आल्सो हैव कम फॉर दैट प्रोबेबली एंड मोर। तो व्हाट इज इट, अभी यहाँ से इस कोर्स से लेके आप अपने बाहर अपने जॉब पे क्या जा रहे हो। और चौथा क्वेश्चन, उसका आंसर मेरे पास है कि क्योंकि आप पहले से ही दूसरी बार ये कोर्स कर रहे हो, इसका मतलब तीसरे और चौथे बार का भी इरादा हो जाएगा। तो मैं हटता हूँ सीन से। ओके। So yeah, my name is Rohit. I'm working in a multinational company. I'm an IT engineer in Chandigarh. So yeah, your first question, what brings हिंदी जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं किस लिए आया, what brings me here. तो डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पोस्ट कोविड जो बर्नआउट हो जाता है वर्क के साथ, तो मेरा प्राइम मोटिव, तो मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ तो मेरा तो यही मोटिव था कि 10 डेज़ में आई नीड अ ब्रेक एंड रीसेट, और वट एवर एक्स्ट्रा जो इससे मिल सकता है, तो दैट वाज आल्सो ऑन द लिस्ट। बट मेरा प्राइम मोटिव यही था कि एक रीसेट चाहिए था मुझे आफ्टर वर्क। तो आई थिंक जो यंगस्टर्स हैं उनका ऐसा ही कुछ एम्बिशन रहता है कि जो डे टू डे लाइफ में ऐसे टूल्स नहीं मिल पाते जिससे स्ट्रेस मैनेज कर सकें या स्ट्रेस से रिलीव हो सकें या लाइफ को इम्प्रूव कर सकें इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद द सोसाइटी। तो वो सब से ही इंस्पायर होके एन इंडिविजुअल कम्स टू द कोर्स, राइट, नॉट विद एनी हायर गोल्स। मैं इसीलिए आया था। तो ये आप फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ये आंसर करता है। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज द प्रोसेस ऑफ द कोर्स। द प्रोसेस ऑफ द कोर्स। सो कोर्स के प्रोसेस से आई थिंक whatever I have, जो भी मैंने सुना है इसके बारे में यूट्यूब पे, तो बहुत रिसर्च करके उन्होंने ये करा है, बहुत सेंचुरी से चलता आ रहा है, तो शायद ठीक होगा। बट बहुत इंडिविजुअल रहता है कि हाँ, जैसे आप ये 10 दिन का कोर्स लगाते हैं तो व्हाट प्रोसेस यू गो थ्रू, एक किस प्रोसेस से एक इंडिविजुअल गुजरता है वो डिफरेंट रहता है, एंड वो क्या कोर्स से किस मेंटल सिचुएशन से जाता है, तो प्रोसीजर भी उससे ही अकॉर्डिंग होता है। बट आई थिंक मोर और लेस कोर्स काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, बट मुझे पर्सनली मैं इससे सोचता हूँ कि 10-20% इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद द टीचर। जो एक टीचर है जो कि एक ही कांटेक्ट है जिससे आप एक्चुअली में बात करते हो पूरे 10 दिन में, तो अगर उनसे आप और ज़्यादा डिस्कस कर सको, क्योंकि आप एक ही बार आते हो, हर बार फ्रीक्वेंटली 10-10 दिन में आना एक इंडिविजुअल को गोल नहीं है। एक बार आते हो तो ही शुड गेट अ फुल पिक्चर ऑफ द प्रोसेस। शायद वो थोड़ा मिसिंग था इसमें। एंड थर्ड क्वेश्चन वाज What do you take from here to the job? what I take, I think I will apply। मैं ये जो मैंने टेक्निक सीखी है, जितनी देर में मैं कर पाऊँ, 15 मिनट 20 मिनट, तो मैं इसको जॉब में जब मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टाइम एंड आई फील स्ट्रेस्ड विद वर्क एंड डेडलाइंस, या पर्सनल लाइफ में भी जब मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशंस होंगी, तो आई विल ट्राई टू यूज़ इट। तो मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी तो मैंने बार बार इसको सुना है कि यू अप्लाई इट एंड यू विल फील द बेनिफिट। 10 दिनों में कुछ बेनिफिट हुआ भी है, बट आई थिंक प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं इसको यूज़ करूँगा तब मैं इसको देखता हूँ कि हाउ इट हेल्प्स मी। So how many marks on the scale of 10? So I think to the whole procedure I'll give it 7. Yeah, 3 Yes. points I'm keeping for my disagreement with the procedure a little bit, and जो थोड़ा गोल सेटिंग है पूरे कोर्स में वो भी थोड़ी नॉर्मल माइंड, इंटेलेक्चुअल माइंड से थोड़ा हट के है, जिसकी वजह से मुझे वो थोड़ा वो लगा कि करंट नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं उस पे ज़्यादा वो नहीं है, इनका गोल जो है थोड़ा डिफरेंट है। और अभी हम आ गए हैं महेश पे। ही इज़ ए लीडरशिप डेवलपर। ही इज़ ए, बाकी इंट्रोडक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बता रहा था, वो बता देगा। बट व्हाट वी आर, जब इससे हमने वही पूछना सवाल लार्जली वही है जो हमने उनसे पूछे थे।
और पहला सवाल मैं एक साथ सारे बता देता हूँ, फिर एक एक करके पूछ लूँगा। पहला सवाल है कि वाई दिस प्रोग्राम, आप यहाँ आए क्यों? और भी दुनिया भर के प्रोग्राम चल रहे हैं, ईशा क्रिया चल रही है, सुदर्शन क्रिया चल रही है, तो यहाँ क्यों, और वो भी दोबारा? दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, जिस तरह से ये कोर्स कंडक्ट किया जाता है 10 दिन का, इज़ इट पिक्चर परफेक्ट या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है? क्वेश्चन नंबर 3 कि आप वो बड़ी बड़ी बातें तो ठीक है, आपके जन्मांतर के दुख मिल जाएंगे, वो मेरे ख्याल से यहाँ ऐसा कोई नहीं आया जो मरना चाहता है और उसके बाद पैदा नहीं होना चाहता है। हर एक बंदा अपने लाइफ की रूटीन प्रॉब्लम लेके यहाँ आया हुआ है। आप भी शायद उसी के साथ आए होंगे, आपके प्रॉब्लम दूसरे लेवल की हो सकती है। तो अभी जब आप वापस जाओगे तो उसी लाइफ में जाओगे जहाँ से आए थे। तो यहाँ से जो टेक अवे है उसको वहाँ आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, और आप तो पहले से भी इंप्लीमेंट कर रहे थे। और चौथा, मैं सारों से सुनता हूँ कि ये बहुत अच्छी साधना, और अब तो मैं भी कायल हूँ इस बात का कि ये बहुत अच्छी साधना है, बहुत अच्छा मेडिटेशन है। तो फिर लोग क्यों नहीं आ रहे? और जो लोग आ रहे हैं, जो टॉप क्रीमी लेयर ऑफ सोसाइटी है, वो नहीं आ रहा है। तो ये चार अब मैं फ्रेम से हट जाता हूँ। इट इज़ ऑल योर्स। क्वेश्चन नंबर 1 याद है तो यू कैन स्टार्ट। सो थैंक यू। मेरा नाम महेश है एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम ए डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर। आई वर्क विद पिरामल फाउंडेशन। हिंदी। पिरामल फाउंडेशन जो कि गवर्नमेंट सिस्टम के जो लोग हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड करता है, उनके लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। तो हम बेसिकली एजुकेशन सेक्टर है इंडिया का, उसको बेहतर बनाने पे काम कर रहे हैं। उसमें कैसे क्वालिटी हम लेकर आ सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली अगर पहले क्वेश्चन पे आऊँ तो जो पहला क्वेश्चन है सर का वो ये है कि आप यहाँ पे क्यों हो, जबकि दुनिया में बहुत अलग अलग तरह की साधनाएँ, अलग अलग तरह की विधियाँ हैं जो चल रही है। तो सबसे पहले तो इसकी ना एक ट्रेजेक्ट्री है। अगर मेरे से ये क्वेश्चन पहली बार पूछा जाता तो शायद मेरा आंसर कुछ और होता, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुझसे जब मैंने 7 या 8 कोर्सेज कर लिए हैं। तो अगर मैं अभी की करंट सिचुएशन बताऊं तो मैं यहाँ पे इसलिए हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू प्योरीफाई माई माइंड एंड बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू डाई पीसफुली। तो डेट्स वाई आई एम हियर। तो पहला तो ये कि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते हुए अच्छे से मरना चाहता हूँ। इफ़ यू इन ऑर्डर टू डाई वेल यू हैव टू लिव वेल। डेट्स वाई आई एम हियर। और अगर मेरे से पहला पूछा जाता था तो पहले मैं एक आने वाला क्वेश्चन आगे आएगा, फॉलोइंग क्वेश्चन होगा, बट जिस तरह के फेज से मैं पिछले 5-6 साल पहले गुजरा था, जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आते हैं, जो सिचुएशन, जो चैलेंजेस, जो हर्डल्स, जिस तरह के जैसे गुरुजी भी कहते हैं विशिट्यूड्स आते हैं, तो वो हैंडल नहीं हो पाते थे। डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा वेवरिंग माइंड होता था, इधर उधर भागना, मन की चंचलता, और उस वजह से जो प्रॉब्लम होती है लाइफ में, ठीक है, डेस्परेशन जो आता है, वो उन सारी चीज़ों की वजह से मैं काफ़ी एजिटेट रहता था, काफ़ी व्याकुल रहता था। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया था। और मैं क्यों आया था यहाँ पे, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। I have tried all of the technique, meditation technique. I have gone to the many masters. I have gone to the many gurus, so-called gurus जो अभी अब जेलों के अंदर है। मैं उनके पास भी गया। मैंने यहाँ तक कि श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी किया था। मगर मुझे वहाँ पे, क्योंकि मैं रैशनल बीइंग हूँ, तो थोड़ा रैशनली भी सोचता हूँ, थोड़ा तर्क भी लगाता हूँ कि किस तरह से चीज़ें होती है। लेकिन वो चीज़ें स्लाइटली कभी जाते हैं तो थोड़ी हेल्प करती है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हेल्प नहीं करती थी। तो जब इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप बोल रहे हो कि आप जब तक आप वहाँ हो तब तक उसका इफेक्ट है। हाँ, जब आप वहाँ से निकलोगे तो उसका इफेक्ट वहीं छोड़ के आ जाओगे, वो वहीं पे छूट जाता है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। सो जब मैं वहाँ से निकलता था, जो बेसिक कोर्स किए, कुछ अलग अलग किए, तो ऐसा होता था। प्लस सेकंड ये होता था, उसमें जब मैं अपने रैशनल लगाता था, अपना तर्क लगाता था, तो ये फील होता था कि वो कुछ ज़्यादा नेचुरल नहीं है। मतलब देयर इज़ सम इम्पोजिशन, कुछ इम्पोज करना है। जैसे अगर कुछ सोचना है तो सोच के कैसे जा सकते हैं, वो यूनिवर्सल तो हो नहीं सकता, नेचुरल तो हो नहीं सकता। तो एक दिमाग में खटपट चलती रहती थी। तो जब डाउन साइड आया मेरी लाइफ का, और बुरा डाउन साइड आया था, वहाँ पे सिर्फ एक ही साधन नज़र आ रहा था, कि क्योंकि मैंने सुना था ये वर्ड विपश्यना करके,
एंड इट इंट्रीग्ड मी वेल। और मुझे इतना ज़्यादा इंट्रीग हुआ, इतना ज़्यादा मुझे क्यूरियोसिटी आई, और मुसीबतें भी बहुत थी लाइफ में, तो सोचा अब जाना है और करना है। ओके, सो द नेक्स्ट वन की अभी आप तो 6-7 बार कर चुके हो, तो आपको लगता है कि ये इनका मेथड परफेक्ट है या कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? जी, ये जो टेक्निक है ना, ये किन लोगों के लिए है? ये टेक्निक है तो सब लोगों के लिए, ये जो मार्ग है सब लोगों के लिए है, बट इस मार्ग पे चलते चलते, क्योंकि इसमें कहा जाता है गच्छामी, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना, इट्स वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्यों विपचना ही क्यों, और यहाँ पे जो सब चीज़ें चल रही है वो इज इट एवरीथिंग ऑल राइट। तो मैं कहना चाहता हूँ, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज और मेरे जितना रिसर्च मैंने किया है 2015 के बाद से, मैंने फाइंड आउट किया है इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज। ओके, गुड, सो आई माई क्वेश्चन गेट्स आंसर्ड। अब ये बताओ कि यहाँ पे जो अभी तो आप इतनी बार हो गए, मतलब कुछ तो है जो अभी आपने अचीव नहीं किया, यहाँ से आप एंड यू आर इन ए जॉब, उसके अपने टेंशन्स हैं ही, जी, वो चलते रहते होंगे, तो यहाँ से वो क्या लेके जा रहे हो जो आपको कल को आपके काम में मदद करेगा? क्योंकि बेसिक एम तो वही है ना। जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि यहाँ से क्या लेके जा रहे हो और क्या लेके गया हूँ मैं पास्ट में भी। तो जैसे मैंने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग है, मतलब जीवन जीते कैसे, हैंडल कैसे करते हैं सिचुएशन को, आपकी जो डेली लाइफ में आती है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से लेके जाता हूँ। और जब मैं हर बार जब नई एक नए कोर्स में जाता हूँ, तो यही रहता है कि जो मैंने सीखी है उसमें और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाऊँ, और ज़्यादा कितना उसमें गहराई लेकर आ पाऊँ, ताकि वो मैं और ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर। और इससे मदद होता है? हाँ जी, डेफिनेटली मदद होता है, इफ़ यू प्रैक्टिस डेली। इफ़ आई टेल यू, जब मैं इनिशियली फर्स्ट कोर्स किया था, आई प्रैक्टिस रेगुलरली फॉर 2 आवर्स 3 months 4 months, तो मेरा उसकी वजह से अभी तक का मेरे को जो है ना इम्पैक्ट नज़र आता रहता है, क्योंकि आई कैन वर्क एफिशिएंटली। जो लोग मेरे साथ के लोग जो है वो 3 घंटे में काम कंप्लीट करते हैं, मैं 2 घंटे में कर देता हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ठीक है, तो वो एफिशिएंसी आती है, एफिकेसी आती है काम करने की, कॉन्फिडेंस रहता है, एंड मोर ओवर दैट यू बिकम स्मार्ट, you become emotionally intelligent person. Okay, and the final you learn to manage your emotion, negative and positive, both constructive and destructive. So in outside world कुछ भी होता है, you spot, आप समझ पाते हो कि अच्छा ये चीज़ है और मुझे अपने आप को कैसे मैनेज करना है, तो that you learn from here. Great. And the last thing कि अगर ये इतना अच्छा है, इतना पुराना है, तो बहुत सारे लोग इस कोर्स को नहीं कर रहे हैं अभी, और जिस तबके के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हालांकि मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहता, बट जिस तबके के लोग आ रहे हैं, द इंटेलेक्चुअल्स, द क्रीमी लेयर, उसके बहुत थोड़े से लोग यूँ हैं यहाँ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उन्हीं को है ना। जी जी जी, तो जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो सबसे कम यहाँ पे हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसा क्यों है? नहीं, ये आप ये देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप इगतपुरी और वहाँ पे जाओ, ग्लोबल पगोड़ा में जो सेंटर है, वहाँ पे स्पेशली एक सेंटर बनाया गया है फॉर द एग्जीक्यूटिव्स। ओके, वहाँ पे तो मतलब मेरे नॉलेज में अभी कमी है। तो वहाँ पे वो लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आते लोग कम कौन आते हैं, यहाँ पे होते हैं जो लोग ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, ओवर स्मार्ट समझते हैं। दे थिंक कि अच्छा हम कर लेंगे, हमारे कुछ कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी हैप्पी है, क्योंकि दे लिविंग इन दैट इल्यूजन कि हम ऑलरेडी हैप्पी है, इसलिए नहीं आना हमें, बिकॉज उनको अपने आप को ही नहीं जानते हैं। और जो गरीब है वो वैसे ही उसको पता नहीं होता, क्योंकि मार्केटिंग नहीं है, और क्योंकि ये विद्या जो है बिल्कुल सेल्फलेसली दी जाती है। आप ये देखिए, बहुत सारे गुरुज हैं हमारे देश के अंदर जो आए दिन यूट्यूब पे मार्केटिंग कर रहे हैं अपने कोर्सेज की। आप नाम नहीं लेना चाहता, बट है ऐसे लोग, सिर्फ अपने बाद इंजीनियरिंग का नाम क्यों नहीं लेना चाहते यार? तो सदगुरु है, आचार्य प्रशांत है, जो इंटेलेक्चुअल बातें करते ज़्यादातर। तो ये हो गया पिछले 3-4 लोगों से बात। अब आखिरी बंदा जिससे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मेरा अपना बेटा, जिसने मेरे साथ ही ये कोर्स किया है, और वो एक अगली जनरेशन को, एक नेक्स्ट डिफरेंट जनरेशन को बिलोंग करता है। तो उसके व्यूज़ क्या है देखते हैं, मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ इंटरेस्टिंग व्यूज़ होंगे। तो चलिए अब उससे बात। तो अब बात करते हैं, हंसी आ रही है इससे बात करते हुए। अब बात करते हैं करण से। ये इसने मेरे साथ ही ये कोर्स किया है या मैंने इसके साथ ये कोर्स किया है, क्योंकि मैं आया इसी की वजह से हूँ। अपने आप शायद मैं आता नहीं आता, आई डोंट नो। तो अब इसका व्यू जानते हैं
बिकॉज ही बिलोंग्स टू ए डिफरेंट जनरेशन. अब ये एक स्टूडेंट है, एक बडिंग स्पोर्ट्समैन है, तो इसका व्यू लेके आते हैं. तो पहला क्वेश्चन, और ये छोटा करके जवाब देना, ठीक है? ओके, सो पहला क्वेश्चन कि तू यहाँ आया क्यों? व्हाई डिड यू कम हियर इन द फर्स्ट प्लेस? तो मैंने और पापा ने मिलके कोर्स की काफ़ी रिसर्च करी तो पहले. तो रिसर्च में ये पता लगा कि ये इकलौता मेडिटेशन का स्कूल ऑफ थॉट है इंडिया में एटलीस्ट, जो एक कल्ट नहीं बनता है, एक कल्टिस्ट मेंटालिटी से दूर रहता है. और ये अपने आप को इस तरह से एडवर्टाइज तो चलो नहीं करते, बट अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि ये साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है और एक्सपीरियंस बेस्ड है. तो देखने के लिए कि इसमें कितनी सच्चाई है और ये एज अ यंग एडल्ट मेरे लाइफ में किस तरह से काम आएगा, इसलिए हम यहाँ. तो यहाँ पे आके जब तूने कोर्स को अटेंड किया तो जो सच्चाई मान के आए थे उसमें कितनी सच्चाई मिली और कितनी सच्चाई अभी ढूंढनी बाकी है? तो इस कोर्स से फ़र्क पड़ता है, ये इफ़ेक्टिव है, बट इसमें काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं मेरे हिसाब से. कुछ एस्पेक्ट्स इसके बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं और वो अपने डिस्कोर्सेज में एक्सप्लेन करते हैं कि आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको ये सेंसेशंस, आपको इस तरह से सेंसेशंस हो रही हैं, तो ये साइंटिफिक है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. पर फिर उन्हीं प्रवचनों में ये मोक्ष की, पुनर्जन्म की वो वाली बातें करने लगते हैं जो एटलीस्ट मेरे जनरेशन से कनेक्ट नहीं होती हैं. तो आई वुड से अराउंड 50 to 60%. सो इट इज यस एंड नो. या ओके, इस कोर्स में कौन सी एक दो जैसी चीजें हैं जो आप बदलना चाहोगे? नॉट दैट आपके बोलने से कुछ बदलेगा, बट आपके व्यूज. एक तो ये ड्यूरेशन स्ट्रेच करते हैं, मेरे को लगता है. आनापान 3.5 दिन चलता है. मेरे को लगा कि मेरा आनापान का जो एफिशिएंसी पीक थी वो 2-2.5 दिन के आसपास पहुंच गई थी. फिर विपस्सना 7वें से 8वें दिन तक एक तरह से ख़त्म हो जाती है, जो इनका सिखाने का काम है. बाकी वो आपका प्रैक्टिस है. तो लास्ट 2-3 दिन थोड़ा ये स्ट्रेच करते हैं, ड्रैग्ड आउट लगता है और दिल कम लगता है. आई थिंक आई विल एग्री विथ यू ऑन दैट, डेफिनेटली. सो आपको लगता है कि आप यहाँ से जब वापस जाओगे और अपने गेम में, अपनी पढ़ाई में लगोगे, आई वॉन्ट अ येस और नो आंसर, तो इस कोर्स को करने का आपका फ़ायदा होगा? आई वुड लाइक टू गिव यू अ येस और नो आंसर बट आई कांट. ओके. अभी मैं अपने इसको घर जाके प्रैक्टिस करूँगा, जब तक ये इस पूरे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करूँगा. और अभी तो फ्रेश किया हुआ कोर्स है, तो अभी मैं कुछ भी कहूँगा वो 10 दिन बाद एप्लीकेबल हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है. तो चलो, आई थिंक ये स्मार्ट आंसर है. मेरे ख्याल से ये भी इसी कोर्स की वजह से है. ओके, सो नाउ 5 क्विक क्वेश्चंस. okay. फर्स्ट ऑफ इट, वाज इट वर्थ इट और नॉट? Yes, for the first experience it was worth it. On the scale of 10, how many marks will you give? 6.5 to 7. Okay. आप वापस आओगे फिर से करने के लिए? Can't say. बताऊँ, अभी इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी पता लगेगा. अच्छा, आपके फ्रेंड्स को जाके बोलोगे कि इसको कोर्स करना चाहिए? एक बार आने तो बोलूँगा. कितने लोग सुनेंगे? नहीं सुनेंगे लोग. थैंक यू, दिस आर वेरी ब्रिलियंट आंसर्स, एक्चुअली ग्रेट, बहुत अच्छा. तो ये तो रही बाकी लोगों के व्यूज़ को जानने की जानकारी. दो तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट उभर के आती हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि जिसने भी अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन जिसने भी इस कोर्स को किया है उसको ये कोर्स अच्छा लगा है. हर एक बंदा सोचता है कि इससे कुछ ना कुछ टेक अवेज है इस कोर्स का. अपने मेंटल कैलिबर से, अपने एनवायरनमेंट के इफेक्ट की वजह से, वे अंधों को हाथी पहचानवाने वाली बात है. जिसको पूंछ समझ में आई उसको पूंछ समझ में आई, जिसको सूंड समझ में आई उसको सूंड समझ में आए. बट समझ में सबके सब कुछ आ गया. तो अब लेक्चरबाजी बंद, इस वीडियो को एंड करते हैं. बट इसका बनाने का मकसद यही था कि एक क्रॉस सेक्शन ऑफ व्यूज़ आपको दिया जाए और ये बताया जाए, क्योंकि ये मेरा कन्विक्शन है कि अगर आप आ सकते हैं तो पक्का आइए, और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आपका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.